Good morning, good morning, good morning. So a very warm good morning to each and every one of you, my dear we Biotonians. Thank you so much for turning up this morning on this super cool, super awesome, absolutely amazing session that we are going to be having on 12th CBSE board sprint, which will help you not only to do really well in your board exams, but absolutely ace, top, do phenomenally well in your NEET exams also. Because as they say in biology, the theory in bio cannot really be too different from your NEET or your MCQs. Only if you have deep theory knowledge will you be able to use this knowledge and do well in your MCQs also. So what is the most important thing is in depth, बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपके पास theory की knowledge होनी चाहिए. And when you have the theory knowledge, you can definitely but obviously do phenomenally well even in your MCQs. So इसी agenda के साथ after the super duper successful class 11 sprint हम आए हैं आपके सामने with super duper awesome class 12 sprint. Be with us, sit with us. You know how important class 12th board exams are और उससे भी ज़्यादा important है you're doing well in your NEET examination, because even if you score 99.9% in your board exams, if you don't do well in your NEET exams, you will not be able to get a seat. This is full chapter in one shot. आपको पता है इस एक चैप्टर से अराउंड 7 MCQs आते हैं, 7 to 8 MCQs. It's a very important chapter. At least 20 plus marks NEET exam में from this single one chapter can come. So be with me. I'm going to go in detail. I'm going to go slowly. पूरा कुछ आपको डिटेल में करवाया जाएगा. The entire chapter of molecular basis of inheritance will be done in one shot. In just, yes, in how many times? In just one shot. And let me promise it to you, it is going to be phenomenal. You'll be able to do well in your board, in your NEET, in all the examinations that you choose to do. So चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार super awesome class. But before I begin the class, here's a quick introduction about myself for those of you who are new to We Biotonic. I don't think so exams से इतने कम दिन पहले anybody is going to be new to We Biotonic, but I am Vani and I represent before you an organization with which I've been associated for more than 10 years now. That is nothing but Vedantu, and I have been extremely proud and privileged to be receiving this honor twice. That's the best teacher of Vedantu at Teachers Conclave, which is one of the largest symposium of teachers from all over the country. Yes, चलिए तो शुरू करते हैं आज की awesome class Vedantu BioTonic की. We have been consistently producing ranks here at Vedantu, standing with kids shoulder to shoulder and making sure that all of you, my dear kids, realize your dreams. आपके सपनों को पंख देना, आपके सपनों को, उम्मीदों को खिलते हुए देखना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी. चलिए सो आगे बढ़ते हैं बच्चों. This is, let me tell you, it is one of the biggest bio groups of the country. One of the biggest bio groups of the country. Around 20,000 members strong. It's not only been 4 months, 4 महीने में we have a Telegram group of close to 20,000 people. Can you imagine the kind of influencer community we've created? 20,000 members strong. You have to be a part of Vedantu BioTonic. It's a Telegram group, Vedantu_BioTonic. Everything small. That's our identity. That's our super amazing Telegram group. Be a part of history. Join this. Chaliye. Please come to our app page. It's an app which got the 2019 Users' Choice App Award in Everyday Essentials. We happen to have had more than 30 lakh plus downloads. If you don't have the app, it's my request to you, make sure you have the app, my dear kids, because jitni bhi live classes I'm taking throughout the day, you can enter the live class and get the feel of a
of a class at a platform called Vedantu, which is one of the best platforms for edtech in our country. Live online tutoring का माना हुआ platform है. When you join a class, you will be able to come on in the class, be a part of the class, solve the quizzes, give your answer fast to see whether you are part of the fastest finger first, whether you are a part of the leaderboard. Is that clear? So all of this, can you see that properly, the slides properly? So all of this can happen only and only if you are a part of our super amazing classes. So guys, चलिए जल्दी से इस ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए. You need to download the app like right now. Is that clear? चलो तो आगे बढ़ते. This is the most amazing app. आइए आगे बढ़ते. चलिए. These are my kids and all of them have already appeared for the interview of KVPY. Now, I really want this to happen, and that's why I show you this slide in every class, because this is what I want. I want this to become a reality. I want your names here. Yes, I want each of your names. I'm going to be asking for your photographs. I want your names here because I want you, my dear kids, to make sure you reach the zenith or the pinnacle of success, and your names should be here, slide after slide after slide. Yes, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. And do you want All India Rank 1 in NEET? Is that a question that haunts you? If you want All India Rank 1 in NEET, let me tell you, you've come at the right place. You've really come at the right place. This is our crash course. It is the best crash course in the country because the best teachers from the entire country have come forward and curated this crash course for you. What happens so many times, and I've seen so many teachers on YouTube waste a lot of time. I've seen that happen myself. They talk, there'll be 3 or 4 teachers standing together trying to take a lecture, and they keep talking amongst each other. There'll be silly giggling happening in the class, So a lot of fun, but in the class none of this happens. It's a very sincere atmosphere to make you study. So there's no unnecessary jokes, no comments, no fun. Obviously there is fun happening, but the most important thing is quality teaching. राइट असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टेस्ट के रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा. राइट, इट्स अ वेरी सिंसियर एटमॉस्फेयर व्हिच अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैपन एट अ लॉट ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स. सो इफ यू वांट समबडी टू सिंसियरली मेक श्योर दैट you get a seat, you know where to come. You need to join the crash course, and the beauty is that we are giving you a crash course at a phenomenal price. So make sure you become a part of the Vedantu NEET crash course. Go to vdnt.in/NEET crash course. Say you have a superpower. My code is VDCC, Vani Dhinsa crash course. Join it. Yes, चलिए तो किस बात की देरी, स्टार्ट करते हैं आज की सुपर कूल क्लास, लाइक द बेस्ट क्लास, द मोस्ट फिनोमिनल क्लास को आज शुरू किया जाए. लेट्स मूव. नेम द एंजाइम दैट जॉइंस द शॉर्ट पीसेस ऑफ in the lagging strand during synthesis of DNA. Obviously, I have told you so many times if this question comes, you should just pump your fist like that and say, yeah, I know the answer. I'm a wee biotonian. So everybody who's pumping fist now on my chat, come on, I want a nice high five on my chat right now. Come on, guys. You have to do this much for your favorite channel and definitely your favorite teacher. Come on. Yes, good. It is the DNA ligase. Yes, चलिए अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे. सो पहले इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है ये आपको मुझे किसी को नहीं पता था. Nobody knew how the information passes from one generation to the other. This was a dogmatic situation. जब किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं होता, आप करते हो होता है वाइवा में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन वाइवा, बट सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग योर वाइवा you just don't have answers. I still remember, kids, and that's why I always believe in the power of hard work. I believe in the power of doing the right thing at the right time. I remember 2 of my vivas which went phenomenally well. So I am a gold medalist from my college. I have been a topper of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, which happens to be one of the top health sciences university of our country. And I remember very clearly, so during my second year it was microbiology, and during my third year it was one of my favorite subjects till date, which is called as pathology. तो सेकेंड ईयर में मैं माइक्रोबायो पढ़ती थी, और थर्ड ईयर में जब मैं सेकेंड या ओरल पैथोलॉजी,
राइट. सो ओरल पैथोलॉजी में there was an external, or microbiology maybe there was an external. I still remember Dr. Deshpande was the one who's a very famous microbiologist. He was the one who was taking a viva for microbiology. And Padmini ma'am, if you ever see the lecture, you were always my role model. She is a very famous pathologist of India. So आप अगर Dr. Padmini oral pathologist करोगे, you will maybe come across her profile. So जब इनसे they were taking my viva, they asked me very tough questions. And I still remember they were like, Vani, it is you. We have high hopes from you. You're always a bright student of the class. So we want you to answer this. And दोनों ही time, I actually felt that मैंने जो भी साल भर में पढ़ा है मुझे immediately सब कुछ recall हो गया and I could very well answer them. So I even wanted to do my post graduation in oral pathology. But yes, so what I'm trying to say is कि जब आपको कुछ आता नहीं है, आपको पता नहीं होता, तो वाइवा में आप कैसे करते हो? आप इधर उधर देखते हो, then you say okay teacher, But you see, what you need to understand is that teachers are smart. तो जो सामने बैठ के आपसे पूछ रहा है वो बहुत ही smart teacher है and they already know everything. So there's no point in trying to गोल गोल घुमाने का कोई फायदा नहीं है. चलिए आइए वापस ट्रांसक्रिप्शन पे. सो डॉगमैटिक सिचुएशन पर हम कैसे पहुंचे ना, कम बैक हियर. डॉगमैटिक सिचुएशन पर हम ऐसे पहुंचे दैट व्हाट इज डॉगमा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज डॉगमा? Hidden when you don't know anything, right? So there was a scientist, Watson and Crick की जोड़ी थी. तो क्रिक ने वॉटसन को धोखा दिया एंड क्रिक अलोन फॉर्मुलेटेड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि डीएनए जब डीएनए बनाएगा दैट्स रेप्लिकेशन, जो हमने अभी किया. डीएनए से बनेगा आरएनए, दैट्स ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, दैट्स ट्रांसलेशन, व्हिच आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी. सो डीएनए से जब आरएनए बनेगा, बिकॉज द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इज इन द साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में है. सो द इंफॉर्मेशन नीड्स टू गो फ्रॉम द डीएनए टू द साइटोप्लाज्म. द इंफॉर्मेशन इज टेकन विद द हेल्प ऑफ अ एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा. इट्स कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए. व्हाट इज इट कॉल्ड? मैसेंजर आरएनए. और न्यूक्लियर पोर होते हैं. What is there? Nuclear pores. And these nuclear pores के थ्रू आरएनए निकलकर बाहर जाता है. न्यूक्लियर पोर पे बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाली हूं. आई वॉन्ट फुल अटेंशन इन माई क्लास. कम ऑन गाइज, मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए इन माई क्लास में. न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर में एन्युलस कौन से प्रोटीन का बना होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन. कम ऑन, दिस आई फील इज अ नीट 2020 क्वेश्चन. लेट मी, आपको पता होना चाहिए 75% ऑफ द पेपर ऑफ नीट 2020 इज गोइंग टू बी इजी, बट 25% is going to be very tough. So you need to tell me in the comment section annulus कौन से प्रोटीन का बना होता है. Also the structure and protein of annulus. Come on, this is your homework today. Structure and protein of annulus अभी बताएंगे आप लोग. चलिए. Transcription is a process of copying the genetic information from one strand of the DNA into RNA, that is your messenger RNA. अमाइनो एसिड्स कैरी करने का काम टीआरएनए का, राइबोसोम बनाने का काम आरआरएनए का. इज दैट क्लियर? एडेनिन फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन. सो एडेनिन थाइमीन की जगह यूरासिल के साथ पेयर करेगा बिकॉज इट इज अ आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है. तो ये जो न्यूली मेड आरएनए है आपका, ये पूरा ये 5 से शुरू होगा और 3 पे खत्म होगा. दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी. इट्स अ 100% MCQ question. What is the polarity? The polarity is it starts from 5 and goes up to 3 prime. 5 to 3. 2 RNA के strands क्यों नहीं बनते? Please listen to this carefully. Have you heard of antisense technology जो फ्लेवर सैवर टोमेटो में होती है? Come on, एक चैप्टर में हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं. Have you heard of antisense technology जो फ्लेवर सैवर टोमेटो में होती है? I'm sure आपने नहीं सुनी है. राइट, I'm 100% श्योर आपने नहीं सुना है. सो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में अगर 2 आरएनए बन गए तो वो दोनों आरएनए आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता. आइडियली स्पीकिंग इसके ऊपर आकर टीआरएनए को अटैच होना है. दिस इज हाउ टीआरएनए इज अटैच. और टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आते हैं जो एमआरएनए में एक स्पेसिफिक कोड के ऊपर अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा. अगर ये दोनों आपस में अटैच हो गए तो टीआरएनए लगने की जगह नहीं है. दैट्स एंटीसेंस टेक्नोलॉजी. देयरफॉर वी मेक ओनली 1 आरएनए. आरएनए के पास कोड होता है. इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज द कोड. इसी के हिसाब से प्रोटीन सिंथेसिस होगा. नाउ डू यू नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी?
राइट? तो अगर ये कोड होगा तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से आरएनए एंटी कोड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये कोड होता, अगर आपका डीएनए कोड होता तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से आरएनए एंटी कोड हो जाता, बट आरएनए को आपको कोड बनाना है। दिस इज द कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, द एमआरएनए। सो व्हाट आर यू गोइंग टू कॉपी? यू आर गोइंग टू कॉपी द एंटी कोड। कितने लोगों को समझ में आया? आई वॉन्ट देम टू प्रेस अ लाइक बटन नाउ। कम ऑन गाइज, this is something that you have to do for your favorite Vani Mam. Come on everybody on my screen. So anti code को कॉपी करोगे तो कोड बनेगा, अगर कोड को कॉपी किया होता तो एंटी कोड बन जाता, बट इसको टेम्पलेट तो कहेंगे, कॉपी तो यही हो रहा है। सो आपका टेम्पलेट क्या है? एंटी कोड, एंटी सेंस, नॉन सेंस, और ये असली में सेंस है। सेंस को कॉपी नहीं करते क्योंकि सेंस तो चाहिए। अगर सेंस को कॉपी करेंगे तो एंटी सेंस बन जाएगा, एंटी सेंस को कॉपी करेंगे तो सेंस बनेगा। वी want sense RNA, therefore we have to copy anti-sense DNA. Is that clear? Transcription occurs only in one direction, that is 5 to 3. 3 to 5 is template, 5 to 3 is your coding strand. Is that clear? Right? ये 5 to 3 आपका कोड है, ऊपर वाला आपका कोड है। कोड को कॉपी नहीं करेंगे, एंटी कोड को कॉपी करेंगे ताकि असली में आरएनए में कोड बनकर तैयार हो पाए। सो व्हाट इज योर ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन आपका एक आरएनए है जो फ्रॉम, एंड यू सी द एंटायर डीएनए इज नॉट कॉपीड। कैन यू मेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी रखता है एट वन टाइम? नो, यू डोंट इवन नीड देम एट वन टाइम। सी, आई एम वेरी टॉल, सो अंडर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आई एम क्लोज टू 6 feet tall, right? I'm really tall. I think I played basketball when I was growing up. That's another story for some other day, but any which ways, you don't really have the energy to make all the proteins at once. You don't have that kind of energy. It's not possible to be able to make keratin, to be able to make collagen, to be able to make osein. You can't do that. So आपकी body decide करती है at that particular time आपको क्या चाहिए. So आपके पूरे DNA में से only a little part of the DNA is copied into the RNA, not the complete DNA. Point number 1. So then this is right your template. This is your template, और template से आपने क्या बनाना है? आपने आरएनए बनाना है। Wherever it starts from, जहां से भी आपका आरएनए बनना शुरू होगा, you always need a promoter to start it. Promoter is always rich in adenine and thymine. Adenine और thymine में rich होता है, so there could be a lot of adenine, thymine, adenine, thymine, adenine, thymine, adenine, thymine. So we can call it a Tata box, right? Tata stands for adenine, thymine, adenine, thymine. राइट यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन है जो असली में प्रोटीन का कोड है। दिस इज द रियल कोड, क्योंकि शुरू वाला तो सिर्फ प्रमोटर है ना, स्विच है स्टार्ट करने के लिए। ये आपकी पूरी स्ट्रक्चरल जीन है जो आपका कोड है, एंड एंड में आपका टर्मिनेटर रीजन है। व्हाट इज योर टर्मिनेटर रीजन? यहां पर खत्म हो जाएगा। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड योर रो फैक्टर, राइट? इनिशियल को हम सिग्मा भी कहते हैं। इट्स योर टर्मिनेटर, यहां पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, जिससे आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सो आरएनए पॉलीमरेज अटैच इधर होगी, टाटा बॉक्स पे अटैच होगी आरएनए पॉलीमरेज, स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनेगा, और फाइनली टर्मिनेटर जीन पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज अटकना या लगना और अटैचमेंट को छोड़ देगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ योर आरएनए इज मेड, एंड यू ओनली मेक वन स्ट्रैंड, नॉट two strand. Let's come to the steps of transcription in prokaryotes. Right? सबसे पहले होता है initiation. Initiation मतलब काम शुरू करना। प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, काम शुरू हो रहा है। So RNA polymerase जो आपकी एंजाइम है वो प्रमोटर साइट पर अटैच होगी। राइट? जब वो प्रमोटर पे अटैच होगी, सबसे पहला स्टेप है वो प्रमोटर पे अटैच होगी। मैंने आपको बोला वो एडेनिन थाइमिन रिच रीजन होता है, वहीं से अनवाइंडिंग रीवाइंडिंग ऑफ डीएनए शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये रीवाइंड मतलब यहां पर तो रीवाइंड होगा ना, तो प्रमोटर साइड जहां होगी इसको ऑपोजिट साइड लिख देते हैं यहां से।
करेक्ट एवरीबडी, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए शुरू हो जाएगा, तो वहां से बनता हुआ आ रहा है। तो अगर ये 5 to 3 बन रहा है, इज दैट क्लियर, राइट? तो अगर आप ऐसे मान लो रिवाइंड, मतलब जैसे जैसे बनता गया पॉलीमरेज मूवमेंट इन्होंने ऐसे दिखाई हुई है, तो ये आगे 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 खुलता चला जाएगा, यहां पे बनता चला जाएगा, तो यहां पे शुरू होगा और बनना बनना बनना, देखो बन गया बन गया बन गया बन गया, आपका बाहर निकल गया 5 to 3, आगे से बढ़ता जाएगा ना, खुलता जाएगा, अनवाइंडिंग, राइट, और पीछे से लूप इन होता रहेगा। ठीक है, आरएनए चेन जो है आपकी वो सिर्फ 5 और 3 डायरेक्शन में बनती है। मैंने अभी आपको बोला पोलैरिटी है, और क्या लगते जाएंगे, ये है आपके ट्राइफॉस्फेट्स फॉर्म, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और सिटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स में होते हैं, दे कीप ऑन कमिंग एंड अटैचिंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से। जैसा जैसा अगर इधर ए है तो टी लगना चाहिए, पर टी तो आरएनए में होता नहीं, यू, इधर जी है तो सी, सी है तो जी, राइट, राइट एवरीबडी, वैसे वैसे लगता। और फाइनली टर्मिनेशन हो जाएगा, जहां रो लिखा है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हटकर चली जाएगी एंड योर आरएनए दोबारा कॉइल हो जाएगा डीएनए, और आरएनए निकलकर बाहर आ जाएगा। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना चाहिए वो ये है बच्चों, that very important point, pay attention in the class, DNA is carrying the burden of evolution। ये पॉइंट मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में हमेशा यूज करती हूं। DNA के पास बहुत सारी अनवांटेड जीन्स है। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन जीन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज चिंपैंजीज? दिस आई फील could again be an MCQ question from evolution. Will you find out the answer and write it down on the comment section? Come on guys, I want answers for these questions which I am asking in the comment section. Those of you who've written the right answers, make sure you will personally get a call from me. I'm going to talk to you personally. I'm going to reply back to your Telegram messages personally, which I anyways I'm doing for all of you, but you will personally get a call from me. So कितना % DNA सेम होता है? वापस आ जाइए, क्योंकि DNA में बहुत सारी अनवांटेड जीन्स होती हैं जिनमें जो कई बार अगर एग्जिबिट हो जाए तो एटाविज्म, बैकफ्लो हो जाता है। तो जो हमारा DNA होता है, राइट, जो हमारा लंबा चौड़ा जो हमारा डीएनए होता है बच्चों, इस डीएनए से जो हमारा पूरा लंबा डीएनए, इसमें बहुत अनवांटेड जीन्स है, तो कई बार ये अनवांटेड जीन्स कॉपी हो जाती हैं। जब ये अनवांटेड जीन्स कॉपी हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरप्टिंग यूनिट्स। ये रहा आपका इंट्रॉन, इंट्रॉन इज योर इंटरप्टिंग यूनिट्स। तो जो भी आपका अनवांटेड डीएनए है, डीएनए में जो भी आपका अनवांटेड डीएनए था वो भी कई बार कॉपी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन। एक्सॉन आपका कोड है, इंट्रॉन आपका इंटरप्शन ऑफ कोड है, इंट्रॉन आपका इंटरप्शन ऑफ कोड है। व्हाट इज इट? योर इंटरप्शन ऑफ कोड। इज दैट क्लियर? ये आपका इंटरप्शन ऑफ कोड है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ये आपका इंट्रॉन आपका इंटरप्शन ऑफ कोड है, एक्सॉन आपका कोड है। अंडरस्टूड? तो इसको आपको हटाना है, विच यू डू विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड एज स्नर्प, राइट? आप इनको हटा देते हो, राइट? इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्नर्प नाम की एंजाइम होती है, इंट्रॉन्स को आप हटा देते हो और लाइगेज से आप एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देते हो। सो नाउ जब आपने एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया, आपको पता चलना चाहिए या नहीं पता चलना चाहिए कि फाइनली मेरे पास एक मैच्योर आरएनए बन गया है। इसको हम हेटेरोजेनस आरएनए कहते हैं। हेटेरो मींस डिफरेंट, इट इज डिफरेंट बिकॉज इसके अंदर वांटेड और अनवांटेड पार्ट्स दोनों हैं, और ये आपका प्रॉपर एमआरएनए है, प्योर। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा फाइनल एमआरएनए बनकर तैयार है। सो क्योंकि आपका फाइनल एमआरएनए बनके तैयार है, कैन यू सी यू पुट अ कैप हियर? कैप होती है 7-मिथाइल गुआनोसिन की, 7-मिथाइल गुआनोसिन की कैप, और यहां पर मल्टीपल एज। कैन यू सी 150 to 250? एवरी वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज मेंशन्ड इन दीज स्लाइड्स। अगर नाउ सी किड्स, YouTube को ना बहुत बुरा समझा जाता है। लॉट ऑफ पीपल से अरे YouTube पे तो पढ़ाई नहीं होती। इसका टोटल वॉच टाइम जो है ना वो सिर्फ 6 मिनट है। एंड यू नो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं who have done this. Why? Because there's a lot of fun, there's a lot of talking, there's a lot of frolicking, there's a lot of activities happening. But if you see our channel and you open any video of V BioTonic, I can promise this to you that you will only see proper content. You will only see material which is of the highest quality presented to you in the most
professional manner. So make sure you see all the lectures that we do for you and feel good and happy about it. तो यहाँ पे बहुत सारा polyadenylation हो चुका है. Many adenyl groups have been added. Capping कर दिया. अब आपका fully processed mature mRNA तैयार है. कैपिंग कर दी, टेलिंग कर दी, बीच का आपका प्रॉपर एमआरएनए तैयार है. अब ये एमआरएनए निकलेगा बाहर इनटू द साइटोप्लाज्म, मिलेगा टीआरएनए और आरएनए से, साथ में बैठ के दे विल ऑल हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड मेक सम अमेजिंग प्रोटीन्स फॉर अस. दैट विल बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. Before we move ahead, you need to name the process in which unwanted mRNA regions are removed. That means you're splicing with the help of SNPs and the wanted regions are joined with the help of ligase. The process is post-translational modification और RNA splicing. अगर ये word नहीं आता है और ये आता है तो please tension मत लेना. It means the same thing. Translation के बाद वाला modification. It is known as post-translational modification. Is that clear, everybody? It is the easiest thing. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस मूव नाउ वेरी क्विकली अहेड. राइट, मैंने आपको आज की क्लास में बहुत 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 एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई हैं. सो मेक श्योर आप ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने आज आपको क्लास में लिखवाई हैं आपको याद रहे. बिफोर आई मूव टू जेनेटिक कोड, क्विकली इसका स्नैपशॉट लीजिए. चलिए क्विकली इसका एक बढ़िया सा स्नैपशॉट लीजिए. Hey kids, so आपने फोटो खींच ली? Yes everybody, जेनेटिक कोड की. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the details of the genetic code. Exactly genetic code क्या है? So you see what was happening was that if you want to read Marathi, you must know the syllables of the Marathi language. Similarly, if you want to read Kannada, ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? See, I speak good Kannada. Yes, ಊಟ ಆಯ್ತು. Yes, everybody, see. ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. So that means morning 6 o'clock you have to attend the class. And for my super cool Kannada, all the Kannadigas in the house, come on! Like. Yes, everybody. Chaliye. So come back to the lecture. So what I was trying to tell you is that it's very, very, very important that you know एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ कोड्स होने चाहिए, कुछ वर्ड्स होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू फ्रेज. यू गेट माई पॉइंट. तो लोगों ने क्या कहा कि एटीजीसी डीएनए में है, वो एटीजीसी एयूजीसी ऑफ एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है. द एमआरएनए थ्रू द न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर पे मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स, प्लीज रिमेंबर दैट. राइट, तो वो बाहर निकल गया न्यूक्लियर पोर से द एमआरएनए एंड इट्स कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू द साइटोप्लाज्म. राइट, एंड साइटोप्लाज्म में वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म में द राइबोसोम्स आर गोइंग टू बी देयर, द टीआरएनए इज गोइंग टू बी देयर. वो एमआरएनए को आइडेंटिफाई करेगा और अमाइनो एसिड्स बनाएगा. बट जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेकर आएगा, एंड दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए needs to be understood. No कि ये कहना क्या चाह रहा है, what is the information, that information needs to be understood. So that information of the genetic material is this in the form of code called the genetic code. Have you heard of the Morse code, right? So if you would have seen the movie Razi, how quickly Alia Bhatt does that. That's the Morse code, right? There's also a code called SOS. So whenever an aeroplane is flying, if suddenly it's about to crash, it's hit by something, there's an engine failure, it's a bird hit, or there is low fuel or anything and wants help, it does SOS, SOS, Mayday, Mayday, Mayday. That's save our souls. So when the Titanic got hit by the iceberg, or the Titanic hit the iceberg, it also sent out the distress call, the distress signal, the SOS signal. You get my point, everybody? So there has to be a genetic code with which the DNA is going to carry information to the cytoplasm, and cytoplasm उस information को लेकर आगे जा रहा है. वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीजीसीज. गैमो नाम का साइंटिस्ट था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? गैमो. सो गैमो नाम के साइंटिस्ट ने कहा, व्हाट डिड गैमो एक्चुअली से? गैमो सेड दैट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ 4 bases एंड द इंफॉर्मेशन हैज टू मेक 20 अमाइनो एसिड्स. तो ही सेड 4 बेस हैं एंड द 4 bases हैव टू इवेंचुअली मेक 20 अमाइनो acids.
सो इस अगर एक बेस एक अमाइनो एसिड बनेगा तो 4 अमाइनो एसिड बन जाएंगे, बाकी बचे हुए 16 अमाइनो एसिड्स का क्या होगा? नो, दैट्स अ रॉन्ग वे टू डू इट. Somebody else said, why don't we make combinations of 2? A, T, A, G, T, C, G, A, G, T. Like that, if you have 4 square, you will have 16 permutations and combinations, but you need 20. That is the reason they eventually came to triplet nature of codon. That means 3 of them are going to code for an amino acid. But when 3 of them code for an amino acid, it will be 4 cube, which is equal to 64, and you need only 20 amino acids. So obviously there is more than, let me write down here, more than 1 code for 1 amino acid, which is called as degeneracy. It's called as the degeneracy of the genetic code. Degeneracy. If you look carefully, I'm going to change my pen and turn on to a green pen now. अगर आप ध्यान से देखो, it is the change is only on the 3rd base pair. Everything else is the same. The change is only on the 3rd base pair. TTT, TTC, TTA, TTG. So पहले के दो अगर आप ल्यूसिन के सारे कोड्स देखिए, CTT, CT सेम है, CT सेम है, ये लास्ट में चेंज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड योर वोबल हाइपोथेसिस. एंड सो मेनी ऑफ यू विल आस्क मी, कम ऑन, फर्स्ट लाइक. बच्चों, टीचर के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता? बताओ. सो राइट, सो इट्स कॉल्ड एज वोबल हाइपोथेसिस. और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वोबल हाइपोथेसिस है ये इसीलिए ट्रू है क्योंकि 3rd बेस पे चेंज होता है, पहले 2 बेसेस सेम रहते हैं. सो एक अमाइनो एसिड का एक से ज्यादा कोड होगा. फर्स्ट 2 digits ऑफ द कोड आर गोइंग टू रिमेन द सेम, द लास्ट वन इज गोइंग टू चेंज. दैट्स कॉल्ड योर वोबल हाइपोथेसिस. नाउ यू विल आस्क मी, मैम, डू यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? नो, बट आई विल टेल यू व्हाट ऑल यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम this. That I will tell you. आपको तीन इसमें ऐसे कोड्स हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए नहीं होते. अगर वो आ जाएंगे तो जहां पर भी वो आएंगे, अगर वो बीच में भी आ गए, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी आ गए, अभी तक चल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस पर वो बीच में आ गए, द सिंथेसिस विल स्टॉप. राइट, UAA, अब ये T लिखा हुआ है बट इट हैज टू बी U. अगर मैं RNA की बात करूं, UAA, UAG एंड UGA. इज दैट क्लियर? UGG तो ट्रिप्टोफेन का होता है, तो हम ऊपर चले जाते हैं. UGA ये रहा, राइट. UAA, UAG और UGA, ये 3 होते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स. दे आर गोइंग टू स्टॉप. मीथियोनिन लिखा हुआ है यहां, AUG होगा अगर ये RNA है. दिस इज द कोड फॉर मीथियोनिन. इज दैट क्लियर? ये आपका स्टार्ट कोडॉन है और ये तीनों आपके स्टॉप कोडॉन है. हमेशा मीथियोनिन से ही शुरू होगा. अगर AUG नहीं है तो शुरू में GUG लग जाए. GUG वैसे कोड होता है वैलीन का, पर अगर शुरू में लग जाए तो वो मीथियोनिन बनाता है. उस मीथियोनिन को फॉर्माइल मीथियोनिन कहते हैं. सो दिस इज अबाउट योर जेनेटिक कोड. चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जेनेटिक कोड से. सेलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स? ट्रिपलेट कोड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको 2 सेकंड पहले बताया, इट्स अ ट्रिपलेट कोड, राइट. और मैंने आपको वोबल हाइपोथेसिस भी बताया, इट इज यूनिवर्सल. आप में, मुझ में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, AUG has to code for methionine. U has to code for phenylalanine. There is no other way. It is universal, starting from prokaryotes to the largest, highest organisms on earth. It is universal. It also shows evolution that all of them had, just one source of coming. Cool. There are no full stops. There are no punctuations. There are no overlapping. One amino acid has more than one code. Did I tell you this 2 seconds ago? Now I want a like for this, guys. Did I tell you this 2 seconds ago? It is degenerate, non-ambiguous, one codon. अगर एक है तो एक कोडॉन, एक अल्फाबेटिक ऑर्डर 5-6 अमाइनो एसिड्स के लिए नहीं हो सकता. It is for only one amino acid. AUG initiator है, UAA, UAG and UGA are your nonsense or the ones which are going to stop the code. Now you must have heard of sudden mutations. This is your protein synthesis का पूरा mRNA. End में होना चाहिए nonsense codon or the stop codon. Due to a mutation, they come right in the middle. The protein synthesis will stop. Wherever they are going to stop the protein synthesis. Let me move ahead. Name the 3 nonsense codons: UAA, UAG, UGA. Amber, Opal, Osher is their name. Amber, Opal, Osher are their names. Can I move ahead? UAA, UAG, UGA. Now I've told you that you have a mRNA जो
प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आ गया है। एमआरएनए आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन लेकर साइटोप्लाज्म में आ चुका है, राइट। उसके पास एक इनिशिएटर कोडॉन है जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, 3 नॉनसेंस कोडॉन है जिनमें से कोई भी एक एंड में लग जाएगा, इट विल स्टॉप, और बीच में पूरा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, ये प्रोटीन लगना चाहिए। देयर इज अ टीआरएनए कॉल्ड द ट्रांसफर आरएनए, ये रहा आपका ट्रांसफर आरएनए। ये जाकर एक अमाइनो एसिड, जो भी आपने डाइट में खाया होगा, व्हाटएवर यू हैड, राइट, टुडे मॉर्निंग आई जस्ट हैड अ ग्लास ऑफ जूस, इमेजिन, राइट, तो जो भी आपने खाया है उससे जो भी अमाइनो एसिड मिले हैं, उस अमाइनो एसिड को टीआरएनए अपने पे अटैच कर लेता है। व्हेन द टीआरएनए अटैचेस टू द अमाइनो एसिड, इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, राइट, जो होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस के प्रेजेंस में। सो टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज charging, which happens in the presence of amino acyl tRNA synthetase। किसकी प्रेजेंस में होता है? अमाइनो असाइल tRNA synthetase की प्रेजेंस में होता है। जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। आरआरएनए जो आपका है वो राइबोसोम्स बनाता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड का कैरियर है, ये अमाइनो एसिड को एमआरएनए पे ड्रॉप करता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड ऊपर लगा होगा ऑन द एक्सेप्टर आर्म, जिसको हम एसीसी आर्म भी कहते हैं, उसी का एंटी कोडॉन नीचे होगा। सो दिस इज योर, लेट मी टेक वन मोर पेन, मेरे पास बहुत पेन है यहां पर, यस, ये आपका एमआरएनए है और ऐसे आके आपका टीआरएनए अटैच होगा। कैन यू सी दैट? ऐसे ऐसे आकर। सो एमआरएनए पे कोड है अमाइनो एसिड का, एमआरएनए पे कोड है, दिस इज योर एंटी कोड। सो कैन यू सी एंटी कोड एंड कोड अटैच, और यहां पे लगा होगा आपका अमाइनो एसिड, लगा देते हैं, चलिए लेट्स डू दैट। ये रहा आपका अमाइनो एसिड, कैन यू सी दिस? ये रहा आपका टीआरएनए, इट इज चार्ज्ड विद दिस अमाइनो एसिड। अब ये आपका कोड है, दिस इज योर टीआरएनए, ये एंटी कोड है, द ब्लैक पॉइंट, और ये ऐसे अटैच होगा। वंस इट इज अटैच्ड, अमाइनो एसिड निकलेगा, अमाइनो एसिड विल कम इन अटैच टू द एमआरएनए। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए, right, I'll put it on the white so that it becomes reflective and you're able to see, and this is a empty tRNA, ये बाहर चला जाएगा to get one more amino acid, right? Amino acids are activated, they are linked to the tRNA, जिसके लिए अमाइनो असाइल tRNA synthetase enzyme चाहिए होती है। अब ये पूरा प्रोसेस होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन, जब UAA, UAG और UGA पे कुछ नहीं लगेगा। ये जो आपका है, दिस इज योर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ब्लैक कलर के पेन से लिखते हैं, बिकम वेरी क्लियर। देर समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आई विल मेक यू सो गुड एट इट that you will be able to do all possible questions, all possible questions. In सब पे I have made 1 hour के individual videos also, which you must see. It's very important that you see this. Is it clear? ATP किस फॉर्म में यूज होती है while doing translation is what you have to tell me in the comment section. All the questions which I'm asking you in the comment section, you tell me on the 3rd of May, इनमें से कितने चीजों पे डायरेक्ट MCQ आए। So go to the playlist, YouTube में हमारी प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आप उठाइए पुराने वीडियोस ट्रांसलेशन के, रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के, इन योर फ्री टाइम जस्ट क्विकली वॉच देम ओवर। आइए, दिस इज योर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज योर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये रहा आपका आरएनए, और यहां पे 3 साइड्स दिखाई दे रही है आपको, APE। ए साइट इज अमाइनो असाइल, यहां नया आरएनए आ रहा है, ई से जा रहा है एग्जिट ऑफ टीआरएनए, नया वाला अमाइनो एसिड यहां पर टीआरएनए से आ रहा है, और पी साइट पे दिख रहा है आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, इज दैट क्लियर? जो पी साइट पे होती है, और अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज इज फॉर अमाइनो एसिड फॉर्मेशन। सो इनिशिएशन पहला अमाइनो एसिड और फर्स्ट टीआरएनए विल कम टू द पी साइट, ऑल अदर टीआरएनएज विल कम टू द ए साइट। ए साइट पे आएंगे, पी पे बॉन्ड बनता रहेगा सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड्स पे, और ई साइट से हो जाएंगे छूमंतर, राइट, एग्जिट। चलिए, इनिशिएशन, सो कैन यू सी, सबसे पहले आया आपका एमआरएनए, एमआरएनए पे कैन यू सी द इनिशिएटर कोडॉन,
स्मॉल सब यूनिट लग गई, स्मॉल सब यूनिट के ऊपर टीआरएनए लगा, दिस विल बी द एंटी कोडॉन। देखो एयूजी अगर आपका कोड है तो यूएसी आपका क्या होगा, एंटी कोड। और ये ऊपर क्या लेकर आया है, अमाइनो एसिड। फर्स्ट किस पे आया है, पी साइट पे, सब्सिक्वेंट किस पे आएंगे, ए साइट पे, एग्जिट किससे होगा, ई साइट से। सो इट बिगिंस एट द 5 प्राइम ऑफ एमआरएनए से स्टार्ट होगा। मैंने आपको पोलैरिटी बताई हुई है 5 to 3, right? mRNA is transcribed from DNA to the ribosomes for protein synthesis. mRNA सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट में लगेगा, पॉइंट नंबर 1, फिर लगता है टीआरएनए, फिर लगता है लार्ज सब यूनिट। इज दैट क्लियर? लार्ज सब यूनिट पे ए साइट होती है और पेप्टिडिल, जहां पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पी साइट। ए साइट पे सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट, उसके बाद वाले अमाइनो एसिड्स आते हैं। पी साइट पे सिर्फ फर्स्ट वाला आता है और बॉन्ड्स बनते हैं, और फाइनली एग्जिट होता है ई साइट से। मीथियोनिन का कोड एयूजी है, तो वो टीआरएनए के यूएसी से अटैच होगा। टीआरएनए का यूएसी उसका एंटीकोडॉन कहलाएगा। ऑलवेज बी कोड एंड एंटीकोड, इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस और नो? यस, करेक्ट। चलो, एक बहुत फेमस पोएट्री पढ़ी थी मैंने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, रियली फेमस पोएट। इट सेज एज विदिन as without, as deep so above. It's very famous in literature. I'm forgetting the name. I will remember the name and probably write it down on the chat section later. What is the name? Really famous, Theophrastus, something like that. The father of botany is really famous, and he's very it's a very powerful poem. It talks about how we are within. That's how we look at the world outside. Whatever is outside is a true reflection of whoever, whatever we are. It's very complementary to each other. As we feel, as we are, as our thoughts are, that's the kind of reality we create for ourselves. Similarly, if AUG is there, it has to attach to UAC. They have to be complementary to each other. There is no other reality in genetics also. Done? चलिए, इलोंगेशन कहाँ होगा? देखो, ये रहा आपका ए साइट, मैंने आपको बोला सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ए, और पी पे कैन यू सी द पेप्टाइड बॉन्ड गेटिंग फॉर्म्ड कंटिन्यूसली? देखिए, कंटिन्यूअस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही रहेगा, कंटिन्यूअस पढ़ता चला जाएगा। ये एमआरएनए ऐसा आता रहेगा, एंड फाइनली जब यहां पर एंडिंग वाला आएगा, जो आगे आएगा टर्मिनेशन में, ऑब्वियसली उसमें तो कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा, सो द 2 सब यूनिट्स आर गोइंग टू सेपरेट। आपको पता है द पी साइट पे फर्स्ट कोडॉन लगता है, करेक्ट। उसके बाद वाले सारे कहां लगते हैं? मैंने आपको बोला ए साइट पे। कहां अटैच होते हैं? ए साइट पे, राइट। और बाकी वाले सारे ए साइट पे। कैसे? एंटी कोडॉन बाइंड्स टू कोडॉन, और पी साइट पे पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है। दिख रहा है आपको? देखो, मीथियोनिन का कोड है एयूजी, तो टीआरएनए के पास है यूएसी। ग्लाइसिन का कोड है जीजीए, तो टीआरएनए के पास है सीसीयू। फर्स्ट इज ऑन द पी साइड, सेकेंड और बाकी सारे ए पे। अब ये भी इधर चला जाएगा, और पी साइड दोनों के बीच में अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगी, करेक्ट। ये देखो, ये ई साइड से निकलता जा रहा है, इलोंगेशन जो है पेप्टाइड बॉन्ड चेन का इस पे होता जा रहा है। फाइनली ऐसा कुछ आएगा वहां पे यूएए, यूएजी और यूजीए, जो अनरीडेबल होगा, बिकॉज ऑफ विच टर्मिनेशन हो जाएगा। So first amino acid is on the P side, second and subsequent on the A side. P side has peptidyl transferase which forms a peptide bond or elongates the amino acid chain. And finally end में आ गया आपका stop codon. I've repeated it so many times for you. UAG, UAA, UGA, amber, opal, osher, so many times I've told you. हो गया टर्मिनेशन, सेपरेशन हो गया। देखो, एमआरएनए अलग निकल गया और सेपरेशन हो गया, करेक्ट। और एक चीज और बता दूं, ये वो एमआरएनए जिसके पास
7 मिथाइल गुआनोसिन और पॉलीएडिनाइलेशन वाली टेल है, तभी राइबोसोम्स की सब यूनिट्स आई हैं। What is the function of amino acid tRNA synthetase? अमाइनो कह दिया, tRNA कह दिया, मतलब अमाइनो एसिड को tRNA से जोड़ना है, which is called as charging, जिसके लिए हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है। Is it okay? Now this is my question to you, जिसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ATP, CTP, GTP, UTP, TTP क्या यूज होता है? होता तो हमेशा ट्राइफॉस्फेट है। सामने क्या लगा होता है? ATP, GTP, TTP, UTP, CTP। Come on you guys, राइट, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। अब आ जाइए आप लैक ओपेरॉन पे। लैक ओपेरॉन पे कम से कम मैं 10 क्लासेस ले चुकी हूं। समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन सब बना चुके हैं हम सुपर लैक ओपेरॉन की क्लासेस में। जितने बच्चे मेरी पुरानी लैक ओपेरॉन की क्लासेस में अभी तक रहे, कम ऑन गाइस, इतनी लंबी एसोसिएशन हुई है हमारी, इतनी लंबी एसोसिएशन। आई वांट 1 लाइक नाउ on my screen, 1 like now, 1 like now, 1 like now। चलो, रेगुलेटरी जीन्स ऑफ लैक ओपेरॉन पे आ जाइए। प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, सीएपी साइट। और डोंट वरी, लेक्चर सिर्फ थोड़ा सा रह गया। देखो ये लेक्चर है अभी बचा हुआ। 1 शॉट वीडियो है, तो मैम के साथ थोड़ा और टाइम तो बिताना पड़ेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कराना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कराना है। 1 शॉट लेक्चर पे इतना टाइम तो लगता ही है, राइट? इतना टाइम 1 शॉट लेक्चर पे तो लगेगा ही। आ जाइए आप, मैं आपको इस एक स्लाइड पे सारा लैक ओपेरॉन डिटेल में समझा दूंगी। सो आइए अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत ही ज्यादा ऑसम क्लास होने वाली है। अब आपको समझ में आए, ये 1 शॉट लेक्चर्स वो नहीं है कि आपको जल्दबाजी में करा दिया, आपको जल्दी जल्दी से कुछ भी करवा दिया। ये वो 1 शॉट लेक्चर्स है जहां आपको एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में करवाई जा रही है। आ जाइए लैक ओपेरॉन पे। लैक का मतलब है लैक्टोज, तो ये एक वो ओपेरॉन है जो लैक्टोज को यूज करता है। लैक्टोज को यूज करने वाले ओपेरॉन को लैक कहा है। ओपेरॉन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ जीन्स होती है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स। ये वो ग्रुप ऑफ जीन्स है जो एक सिंगल ऑपरेटर के अंडर है। मैं दोबारा बता देती हूं, दीज आर अ ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर अंडर अ सिंगल ऑपरेटर। तो जब भी एक ऑपरेटर के अंदर ग्रुप ऑफ जीन्स होती है, हम उसको ओपेरॉन कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ जीन्स हमेशा प्रोकैरियोट्स में काम कर पाती हैं। दे हैव टू वर्क टुगेदर। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में काम कर पाती हैं क्योंकि उनकी जीन्स बहुत सिंपल होती हैं। ह्यूमन बींग्स की जीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स या यूकैरियोट्स के अंदर ग्रुप्स ऑफ जीन्स नहीं होती है। आ जाइए, प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, राइट? प्रमोटर आपकी आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 500% डायरेक्ट। ऑपरेटर पे रिप्रेसर का मतलब होता है रिप्रेस या स्टॉप करना, तो जिसका भी काम रिप्रेस या स्टॉप करना है वो ऑपरेटर पे लगा हुआ हो। ऑपरेटर उस पर लगता है, रिप्रेसर पे। यस, ऑपरेटर किस पे मतलब रिप्रेसर किस पे लग जाएगा? ऑपरेटर पे, और काम को रोक देगा। रेगुलेटर जीन आई है, ये रिप्रेसर बनाती है। रेगुलेटर क्या होता है? पंखे की स्पीड एडजस्ट करने के लिए डू वी हैव अ रेगुलेटर टू काइंड ऑफ रेगुलेट द स्पीड ऑफ द फैन? सो दिस विल मेक अ रिप्रेसर। If the repressor attaches to the operator, the work will stop. If the repressor does not attach to the operator, the work will not stop. Isn't that simple? If the repressor attaches to the operator, the work will stop. If the repressor does not, because repress means to stop, to halt. लिखिए, repress English word which means to stop or to halt, right? So if the repressor attaches to the operator, the work will stop. If it does not attach, the work will continue. And regulator है जो repressor बनाता है। CAP site एक catabolite activator protein है। It's nothing but it's the one which will help the entire operator run. एंड में 3 जीन्स होती है, Z, Y और A। ये तो स्विच है, ये ऑपरेटर, रेगुलेटर, राइट? ये I जीन है, इसने रिप्रेसर बनाया। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे लग गया तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे नहीं लगा तो ये नहीं लगा, क्रॉस बनाए, ऑन हो जाएगा। ऑन और काम करने वाली जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स 3 है, लैक Z, लैक Y, लैक A। ये तीनों लैक्टोज को डाइजेस्ट करती हैं। ऑपरेटर का काम है in the presence of lactose to digest lactose,
break it down into glucose and galactose and take the glucose. But अगर lactose नहीं है और डायरेक्टली ग्लूकोज प्रेजेंट है, इट विल टेक ग्लूकोज डायरेक्टली. अगर ग्लूकोज नहीं है, सो फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज का ना होना. ग्लूकोज नहीं है. अगर वानी मैम है और वी बायोटॉनिक चैनल है, तो मुझे पूरा यकीन है आप बायो पढ़ने कहीं और नहीं जाओगे. अगर वानी मैम नहीं है तो आप हो सकता है इधर उधर जाओ. तो सिमिलरली अगर ग्लूकोज डायरेक्टली प्रेजेंट है तो वो और कोई फूड सोर्स नहीं लेगा. पर अगर ग्लूकोज नहीं है, इफ ग्लूकोज इज नॉट देयर, ग्लूकोज नहीं है, तो वो लैक्टोज को बुलाएगा, उसमें से ग्लूकोज और गैलेक्टोज तोड़कर निकालेगा और ग्लूकोज को ले लेगा. राइट. सो ये 3 जीन्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज. एंजाइम्स जो ZYA जीन से बनती हैं, दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टोज, एब्सॉर्बिंग द ग्लूकोज एंड यूजिंग लैक्टोज. राइट. रिप्रेसर का मतलब होता है रोकना. रोकना, रिप्रेस, रोकना. अगर बाहर ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है, अब मैं आपको यहीं पे सब कुछ बता देती हूं, इतना सिंपल है. अगर ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है, तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टली ग्लूकोज लेगा. डायरेक्टली ग्लूकोज लेगा. अगर वानी मैम है और कोई नहीं है, डायरेक्टली ग्लूकोज लेगा. तो ZY को ऑफ करना पड़ेगा. ZY को ऑफ कौन करेगा? रिप्रेसर. रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे लग जाएगा, अटैच हो जाएगा. अब आप दूसरा नजारा समझिए. ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है पॉजिटिव, सो ये लैक्टोज जाकर रिप्रेसर पे लगेगा, रिप्रेसर हो जाएगा इनएक्टिव, वो जाकर ऑपरेटर पे नहीं लग पाएगा. ZYA ऑन हो जाएगा. सो सिंपल. क्लिक अ स्नैपशॉट. इट्स द इजीएस्ट थिंग. क्लिक, डन. राइट. तो ये आपका लैक ओपेरॉन है. लैक ओपेरॉन पे मैंने एक 1.5 घंटे की क्लासेस ली है बच्चों. इट इज सो इंटरेस्टिंग. तो आपकी ZY जीन्स होती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज बनाती हैं. ऑल 3 एंजाइम्स. ये तभी चाहिए अगर लैक्टोज है, क्योंकि ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज को यूज करने में हमारी मदद करती है. अगर लैक्टोज नहीं है, इफ देयर इज नो लैक्टोज, मुझे इन तीनों एंजाइम्स की जरूरत नहीं है. Z बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगी लैक्टोज परमिएज, और ये ट्रांस एसिटाइलेज, ये सारी लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट, उसके अपटेक का ही काम करती हैं. अगर लैक्टोज एब्सेंट है, मैंने अभी समझाया लैक्टोज है ही नहीं, तो ZYA से मुझे काम नहीं करवाना, क्योंकि ये तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगी. लैक्टोज ही नहीं है तो मैं इनका काम क्या करवाऊंगी. तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो आई ने बनाया है, वो जाकर लग गया इधर. देखो ऑपरेटर पे. रेगुलेटर जीन आई, इंड्यूसर उसने बनाया रिप्रेसर, और ये जाकर ऑपरेटर पे लग गया. RNA पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट अटैच, और ZYA का काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लैक्टोज. लैक्टोज एब्सेंट. लैक्टोज ही नहीं है. अगर नीट का एग्जाम ही नहीं होगा तो वी बायोटॉनिक की कोई बुनियाद ही नहीं है. इफ देयर इज नो नीट एग्जामिनेशन. अब आप दूसरी स्लाइड देखिए. लैक्टोज प्रेजेंट होगा. सी, लैक्टोज प्रेजेंट है. एलो लैक्टोज और लैक्टोज, यस, आइसोमेरिक. अब ये लैक्टोज प्रेजेंट है, मतलब ZY को ऑन रहना है, काम करना है. ये कब काम करेंगे? जब RNA पॉलीमरेज एंजाइम से, देखो हमने RNA बनाकर एंजाइम प्रोटीन्स ट्रांसलेशन करवाया है, तो आपने रिप्रेसर को इनएक्टिव किया, रिप्रेसर जाकर इधर अटैच नहीं हो पाया, ऑपरेटर आपका ऑन हो गया, पीछे ऑफ हो गया था. RNA पॉलीमरेज देखो एंड तक पहुंच गई, इट्स डन इट्स वर्क. सो व्हेन लैक्टोज इज देयर इन द मीडियम, द रिप्रेसर इज ऑफ. व्हेन लैक्टोज इज नॉट देयर इन द मीडियम, द रिप्रेसर इज ऑन. लेट मी शो इट टू यू नाउ. व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, ऑपरेटर इज ऑफ. When lactose is present, operator is on. This is lac Operon. Lac stands for lactose. Operon is a group of genes. For example, the structural gene ZY, which are under a single operator. It is found in
प्रोकैरियोट्स, क्लस्टर ऑफ जीन्स अंडर सिंगल प्रोमोटर। करेक्ट। आ जाइए ह्यूमन जीनोम के ऊपर। ह्यूमन जीनोम मतलब आपका जितना डीएनए है A to Z, मैंने पूरे डीएनए को डीकोड अनकोड किया है। दैट्स द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। एवरेज जीन बनी है 3000 बेसिस की। लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन एक्स क्रोमोसोम, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज 30,000 जीन्स। कैन यू इमेजिन? 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल. 0.1% makes each one of us unique. That means you and me, everybody else is 99.9% of the human DNA same. कम से कम 50% ऑफ द जीन्स का फंक्शन हमें मालूम ही नहीं है। क्रोमोसोम 1 की सबसे ज्यादा जीन है क्रोमोसोम Y, the one which men have, has the fewest. Less than 2% of the genome codes for proteins. 98% doesn't even make proteins in the human body, guys. रिपीटेड सीक्वेंस जिनको हम VNTR कहते हैं, जो मेरे आपसे बहुत अलग होंगे. मैक्सिमम फॉर मी विल बी सिमिलर टू माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, नॉट आइडेंटिकल. दैट इज VNTR, जिसकी वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे. रिपीटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, राइट. रिपीट होते हैं, VNTR होते हैं, टीलोमर के पास होते हैं. अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस where single bases are different. Can you imagine? ये होता है आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. आपके और मेरे डीएनए में 99% सेम है, बट 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां इतने लंबे डीएनए में आपका और मेरा डिफरेंस पता है किसका है? 1 बेस पेयर. इतने हजारों मीटर दूर लंबे डीएनए में हाउ मच इज द डिफरेंस? जस्ट 1 बेस पेयर. अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस. सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है अपीयरेंस. सिंगल जगह पर बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस हमारे सेम हैं, बट एक छोटी सी जगह पर डिफरेंस आ जाता है. बहुत शॉर्ट में मैं आपको करवाने वाली हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आपका और मेरा डीएनए 99.9% सेम है. द 0.1% डीएनए विच इज डिफरेंट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, VNTR. VNTR is the short sequence of non-coding repeats of DNA जो टैंडमली हर थोड़ी देर बाद आपके और मेरे डीएनए में रिपीट होगा. दिस कैन बी आइडेंटिफाइड, और इसका एक एक्सरे बैंड विड्थ टाइप का पैटर्न बन सकता है जो आपका और मेरा बहुत डिफरेंट होगा, विच इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंट. करेक्ट. डीएनए को कट करते हैं हम किसकी तरफ से? मॉलिक्यूलर सिजर्स. मॉलिक्यूलर सिजर्स से जब हम डीएनए को कट करते हैं तो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हम डेंसिटी के ग्रेडियंट पे सेपरेट कर देते हैं. सेपरेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, बिकॉज द स्मॉलर वंस विल मूव फर्दर अपार्ट, और जो लंबा वाला डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा. इट्स कॉल्ड एज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसकी वजह से हम VNTR लेते हैं और उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं. नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर जब हम VNTR डालते हैं तो हम देखते हैं कि VNTR कौन सा है और उसका ऑपोजिट प्रोब अटैच करवा देते हैं. प्रोब को हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड आइसोटोप से बाइंड करते हैं, और जब उसका फोटोग्राफिक फिल्म पे एक शॉट लेते हैं तो हमारे पास पूरे का पूरा रेडियो आइसोटोप लेबल्ड फोटोग्राफिक फिल्म आ जाती है, विच इज कॉल्ड योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए को आइसोलेट करो, यस, एम्पलीफाई करो थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मैं आपको बायोटेक में कराऊंगी. डाइजेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से उसको सेपरेट करो. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा, दैट इज द एनोड, जब वो मूव करेगा आपको पता होना चाहिए शॉर्टर फ्रैगमेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो आगे तक पहुंच जाएंगे. ट्रांसफर करोगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, और उसका एक प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स. अगर आपका VNTR AUG है तो आपका जो प्रोब होगा वो UAC होगा, और जब UAC उसके ऊपर लगाओगे वो अटैच हो जाएगा. रेडियो एक्टिव प्रोब लगाओगे, ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रखोगे, एक्सपोजर ऑफ द फोटोग्राफिक फिल्म का एक स्पेसिफिक बैंड पैटर्न बन जाएगा. That's your DNA fingerprint. What are the two applications of DNA fingerprinting? Criminals और real और biological cases, paternity, because एक बच्चे का जो DNA fingerprint है वो parents से match करेगा. Yes, everybody. So with this,
this really big, huge, मजेदार, awesome, और एक एक चीज पे कहीं पे शॉर्टकट नहीं मारा गया है, कहीं पे we never try to talk extra, we never try to just have fun in the class, keep laughing बेवजह. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मजेदार क्लास हुई है. For everything that we've been doing for you guys, you really need to tell one friend of yours about the awesome channel that we have called BioTonic. Make sure you like, you share, and you subscribe to our channel, guys. Right now, click a like on the button, and right now subscribe to our amazing channel. I'm going to see you tomorrow in these super amazing one-shot videos. I'm going to make sure सारा syllabus बहुत speed पे NEET board दोनों पार. Bye guys. Take care. Like, share. Come on guys, subscribe. Bye.